Good morning, students. Today we take new chapter triangles. We have already studied that what is the congruency of triangles. Okay, in 9th class, in 8th class. So when two triangles having same shape and same size, then that triangles or that figures are called as congruent. Okay, so suppose this triangle ABC and another triangle PQR. When these two triangles are congruent, so there are 5 criteria we have discussed in earlier classes. That first criteria is SAS, second ASA, third AAS. This is also same, but we including next criteria. Okay, 4 SSAs, 5 RAs. तो हमने पिछले क्लास में ये 5 क्राइटेरिया देखे थे जिनसे कोई भी दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं. तो when these two triangles having same side, okay, so AB equal to PQ, BC is equal to QR and इनके बीच का जो एंगल है D और Q अगर ये इक्वल है तो these two triangles are congruent by which criteria? Yes से yes. ओके, तो इसी तरह A या से दो एंगल उनके बीच की एक साइड अगर इक्वल है दो ट्रायंगल की तो these two triangles are congruent. Otherwise AAS, then तीनों साइड अगर इक्वल है तो these two triangles are congruent. और RHS, in RHS when in any right triangle, okay, hypotenuse is equal and out of these two sides any one side is equal of two triangles. So here suppose this is one right triangle, this is another right triangle. Okay, it is ABC, it is PQR, this is 90 degree, this is 90 degree. Then hypotenuse, suppose AC equal to PR and BC is equal to QR. Means दो राइट ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज अगर इक्वल है और दो में से कोई भी एक साइड अगर इक्वल है दोनों ट्रायंगल की, तो टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय व्हिच क्राइटेरिया? RHS. ओके, तो ऐसे 5 क्राइटेरिया थी जो हम ये पढ़ा कि दो ट्रायंगल कैसे कॉन्ग्रुएंट होते हैं. So in congruency of triangle, when the shape and size both are equal, then these are called congruent figures. Okay, but in case of similarity, there is slightly difference. So slightly difference between congruency and similarity. तो congruency में क्या होता है? Shape and size ये दोनों इक्वल होना चाहिए इन कॉन्ग्रुएंसी. बट इन सिमिलैरिटी शेप इक्वल होना चाहिए और साइज मे नॉट बी सेम. ओके, तो इस वक्त सिमिलैरिटी में क्या होता है कि कोई भी दो फिगर का शेप अगर सेम है तो हो सकता है उनकी साइज सेम होगी या डिफरेंट होगी. ओके, तो सिमिलैरिटी में इतना डिफरेंस है. In congruency, shape and size both are equal, and in similarity, shape is equal and size may or may not be equal. Same भी हो सकती है या different भी हो सकती है. Okay. So in case of regular polygon, suppose there is sphere. This is sphere. अगर आप दूसरा स्फीयर निकालते हैं having the same sign, suppose it has 3 cm, it has also 3 cm, then these two spheres are always congruent to each other. Okay, these two spheres are always congruent to each other, but these spheres are similar to each other also, because every regular polygon are similar to
each other. Understand? So every regular polygon, that is स्क्वायर हो गया, इक्विलैटरल ट्रायंगल्स हो गए, उसके बाद रेगुलर पेंटागन, रेगुलर हेक्सागन, तो ऐसे कितने भी आप रेगुलर पॉलीगॉन लेंगे तो एक दूसरे को सिमिलर होंगे। हो सकता है उनका शेप सेम है लेकिन उनकी साइज अलग हो सकती है या सेम हो सकता है। तो देखो ये अगर रेगुलर हेक्सागन है और मैंने ये दूसरा रेगुलर हेक्सागन निकाला, तो these two regular hexagons are similar but they are not congruent. Okay, तो सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी में इतना ही फर्क है। कॉन्ग्रुएंसी में शेप और साइज सेम होता है, जितना साइज की फिगर होगी उतनी साइज की दूसरी फिगर होना चाहिए, तभी वो दो फिगर एक दूसरे को मैच कॉन्ग्रुएंट करेंगे। ओके, एक दूसरे के ऊपर एकरूप हो जाएंगे। लेकिन इन केस ऑफ सिमिलरिटी साइज सेम हो सकती है या नहीं हो सकती है। ओके, सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कॉन्ग्रुएंसी एंड सिमिलरिटी। सो इन केस ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन, एवरी रेगुलर पॉलीगॉन आर सिमिलर। ओके, हर रेगुलर पॉलीगॉन सिमिलर होता है, बट इट इज नॉट नेसेसरी टू हैव देयर कॉन्ग्रुएंट। ओके, सो नेक्स्ट पार्ट वी सी इन केस ऑफ क्वाड्रिलेटरल, सपोज this is rhombus and this is square। क्या ये rhombus और square सिमिलर है? तो सिमिलर होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होना चाहिए। तो रिमेंबर दैट देयर इज द फर्स्ट कंडीशन फॉर सिमिलरिटी। सो फर्स्ट कंडीशन इज करस्पॉन्डिंग एंगल्स are equal। ओके, तो कोई भी दो फिगर सिमिलर कब होंगी जब उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगी। दैट इज द फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन इट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। रेशियो ऑफ देयर corresponding sides are proportional। तो ये दो कंडीशन पे इंपॉर्टेंट है कि कोई भी दो फिगर सिमिलर कब होंगे। तो फर्स्ट इज करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए और रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। ये अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो समझ लेना दोनों फिगर का सिमिलर होगी। ओके, तो हम एक एग्जांपल लेंगे। सो सी हियर, दिस फिगर इज ऑफ rhombus having side 2 cm and this is square also having side 2 cm। अब आप हर साइड का रेशियो निकालेंगे, ABCD, सपोज इट इज PQRS। आप हर साइड का अगर रेशियो निकालते सपोज AB अपॉन PQ, इट इज 2 अपॉन 2, दैट इज 1। देन AD अपॉन PS, इट इज आल्सो 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1। देन BC अपॉन SR, 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1। देन BC अपॉन QR, it is also 2 upon 2 is equal to 1। okay, but here first condition is satisfied, that is ratio of their corresponding sides are proportional, because हमने दोनों साइड का रेशियो निकाला, रोम्बस और स्क्वायर की साइड का रेशियो निकाला, तो हर रेशियो हमें सेम मिला, मींस रेशियो आर प्रोपोर्शनली इक्वल। ओके, अब व्हाट इज द कंडीशन नेक्स्ट? करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। क्या ये एंगल और ये एंगल इक्वल है? दिस इज 90 डिग्री बट इट इज लेस देन 90 एंड इट इज मोर देन 90। ओके, सो करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर नॉट इक्वल। इट मींस इन these two figures, in case of rhombus and sphere, only one condition is satisfied, that is ratio of their corresponding sides are proportional, but other condition, that is corresponding angles are equal, are not satisfied।
Okay, it means these two figures are not similar. Okay, so let us consider another example. Suppose this is rectangle and another figure is square. This is 3 centimeter, this is 2 centimeter and it is 2 centimeter. अब आप इन दोनों फिगर को अगर ऑब्जर्व करेंगे तो corresponding angles are equal because here all angles are of 90 degree and in square also all angles are of 90 degree. Means all corresponding angles are equal. But अगर आप साइड का रेशियो निकालेंगे तो suppose here we give the name ABCD PQRS. So AB upon PS, it is 2 upon 2 equal to 1. Then BC upon SR, that is 3 upon 2, it is 1.5. Then BC upon QR, 2 upon 2 is equal to 1. Then AD upon PQ, 2 upon 3 upon 2, that is 1.5. तो यहाँ पे आप ऑब्जर्व करेंगे कि दो फिगर जो आपको दी गई है उनके साइड का अगर आप रेशियो निकालेंगे तो रेशियो इक्वल नहीं आएगा. ओके, तो इस केस में आपको क्या ऑब्जर्वेशन आ रहा है कि दोनों फिगर के करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है लेकिन रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर नॉट प्रोपोर्शनली इक्वल. इट मींस दिस टू फिगर्स आर नॉट सिमिलर. तो कोई भी दो फिगर सिमिलर कब होते, क्वाड्रिलेटरल कब सिमिलर होंगे, तो फर्स्ट कंडीशन आपको सेटिस्फाई होना चाहिए करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल और रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, तभी दोनों क्वाड्रिलेटरल सिमिलर होंगे. ओके, तो सिमिलैरिटी का सिंबल जो है इस तरह यूज करते हैं. ओके, जैसे हम कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल यूज करते हैं वैसे ही सिमिलैरिटी का सिंबल इस तरह सिंबल आपको यूज करना है. डिस्कस सम क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी. जैसे हमने देखा कि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं, तो हमने लास्ट ईयर में पढ़ा कि उसकी कॉन्ग्रुएंसी के 5 क्राइटेरिया थे. इसी तरह व्हेन टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, तो इनके भी कुछ क्राइटेरिया ऐसे है कि उन क्राइटेरिया अगर सेटिस्फाई हो गए तो समझ लेना दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए. तो जैसे हमने देखा फर्स्ट पार्ट में कि what is the difference between congruency and similarity, then what are the conditions for two quadrilaterals are similar, that is corresponding angles are equal and ratio of their corresponding sides are all proportional. Okay, then जितने भी regular polygons है all are similar but need not be they are congruent. जैसे सर्कल हो सकते हैं, आप सेम रेडियस का निकालेंगे, दो सर्कल हो सकते हैं, दे आर कॉन्ग्रुएंट एंड आल्सो दे आर सिमिलर. बट आप एक सर्कल निकालो, दूसरा सर्कल कितनी भी रेडियस का निकालो, तो बोथ सर्कल्स आर सिमिलर बिकॉज रेशियो ऑफ देयर रेडियस इज ऑलवेज सेम. ओके, तो इस तरह हर रेगुलर जो पॉलीगॉन है वो सिमिलर है और इट नीड नॉट बी इट इज कॉन्ग्रुएंट. तो इस तरह हमने देखा. अब हम देखेंगे कि दो ट्रायंगल when they are similar, so what are the criteria? Okay, so here first criteria is it is called AAA or it is called AA. Okay, means angle and simply it is called angle. Okay, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब आपको कोई भी दो ट्रायंगल्स दिए हैं, दोनों ट्रायंगल अगर आपको दिए, सपोज वन ट्रायंगल इज ABC and another triangle is PQR, तो ये दो ट्रायंगल सिमिलर कब होंगे, तो इट इज important criteria that is AAA or simply called as A. Okay, so in दो ट्रायंगल में जब एक एंगल A इक्वल टू एंगल P, तो इस ट्रायंगल का एंगल A और एंगल P अगर इक्वल है, सपोज इट इज 30 डिग्री, इट इज आल्सो 30 डिग्री,
देन एंगल बी, ये एंगल सपोज हम इसको लिखेंगे 75 डिग्री, तो इधर का एंगल Q ये भी 75 डिग्री। तो इसका मतलब ये हुआ कि B एंगल R को इक्वल। तो इस दो ट्राइंगल में ABC और PQR ट्राइंगल में आप देख रहे हैं कि एंगल A और एंगल P इक्वल है, होता 30 डिग्री। एंगल B और एंगल R इक्वल है बिकॉज ऑफ 75 डिग्री बोथ। ओके, सो अब इसमें देखो ऑटोमेटिकली दो एंगल अगर इक्वल हो गए तो तीसरा एंगल भी इक्वल होगा बिकॉज सम ऑफ दिस थ्री एंगल्स इज 180 डिग्री। ओके, सो इट इज ऑब्वियसली थर्ड एंगल इज आल्सो इक्वल। सो व्हेन in any two triangles, angles, corresponding angles are equal, then ratio of their corresponding sides are also proportionally equal. Ratio of their corresponding sides are also proportionally equal, then these two triangles are similar to each other. So we can write here triangle ABC similar to। अब देखो सिमिलर का नाम लिखते हो तो आपको क्या करना है, करस्पॉन्डिंग टू करस्पॉन्डिंग करना है, 1 to 1 करस्पॉन्डिंग हिसाब से नाम लिखना है। तो ये एंगल किसको इक्वल है, P को, तो यहाँ पे A के सामने P आ जाएगा। ओके, उसके बाद B को इक्वल है R एंगल, तो B के सामने R आएगा और रिमेनिंग एंगल C के एंगल Q आएगा। So it is PRQ. So triangle ABC similar to triangle PRQ. So it is called AA criteria. So what is meant by AA criteria? In any two triangles, when corresponding angles are equal, then ratio of their corresponding sides are proportionally equal, then these two triangles are similar। अब मैंने ये जो सेंटेंस बोला उसका मीनिंग क्या है, थोड़ा ध्यान से देखो। इन टू ट्रायंगल्स corresponding angles are equal means here angle A is equal to angle P, it is given, then angle B is equal to angle R। तो इन दो ट्रायंगल में दो एंगल्स इक्वल, तो ऑटोमेटिक थर्ड एंगल भी इक्वल होगा। वी नीड नॉट टू वरी अबाउट थर्ड एंगल। ओके, एंड ये जरूर नहीं कि हमें वो लिखना है। अगर दो एंगल इक्वल है तो इट मींस देयर रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स इज आल्सो प्रोपोर्शनली इक्वल। सो इट मींस अब रेशियो क्या है, तो देखो इधर ये दो एंगल के बीच ये जो साइड है AB और कौन सी साइड होगी, AB और PR, ये साइड इसका है करस्पॉन्डिंग। ओके, देन इज इक्वल टू ये जो साइड BC है ये इसको आएगी, सो BC अपॉन RQ। देन थर्ड साइड दैट इज AC इक्वल टू PQ। ओके, so AC upon PQ. So ratio of these corresponding sides is proportionally equal. Means ratio of these two sides is same as ratio of these two sides. Means the ratio of three corresponding sides is always proportionally equal. So it is called AA criteria. So what is AA criteria? In any two triangles, when corresponding angles are equal, then ratio of their corresponding sides are proportionally equal, then two triangles are similar। ओके, तो पहली क्राइटेरिया है कि दो ट्रायंगल में कोई भी अगर दो एंगल इक्वल होते हैं, दो ट्रायंगल में कोई भी दो एंगल अगर इक्वल होते हैं तो समझ लेना दो ट्रायंगल सिमिलर है। बाय विच क्राइटेरिया, ए क्राइटेरिया। ओके,
और दो ट्रायंगल अगर सिमिलर हो गए तो रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आल्सो प्रोपोर्शनली इक्वल. ओके, सो दिस इज आवर फर्स्ट क्राइटेरिया. Now we take second criteria. So for this second criteria is called as yes criteria. Triple yes. Incongruency also there is yes criteria. But लेकिन उसमें और इसमें एक ही सिंपल फर्क है कि कॉन्ग्रुएंसी में तीनों साइड करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं. तीनों करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो प्रोपोर्शनली इक्वल होना चाहिए. Okay, then two triangles are similar. So suppose here one triangle is given as ABC. Another triangle is PQR. Suppose AB, PQ, BC, PQ, and AC. ओके, अब इसमें देखो व्हाट इज एसएसएस क्राइटेरिया. सो इन टू ट्रायंगल्स व्हेन रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनली इक्वल देन करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल. Then these two triangles are similar. So what is यह इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये जो दोनों ट्रायंगल है, इस दो ट्रायंगल में जब तीन साइड का रेशियो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो अगर इक्वल है तो ऑटोमेटिक दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए, और सिमिलर होने के बाद करस्पॉन्डिंग एंगल्स आल्सो बिकम इक्वल. ओके, सो सी हियर if corresponding sides are proportionally equal, so here AB upon which side? AB upon RQ. इसको ये corresponding proportional है. उसके बाद BC होगा QP equal to which side? AC ये, that is RB. Okay, so we get ratio of corresponding sides are proportionally equal. Then एंगल, अब कौन से एंगल इक्वल होंगे? पहले आपको करस्पॉन्डिंग नाम लिखना है, सिमिलर ट्रायंगल के नाम. तो यहाँ पे ध्यान से देखो, ट्रायंगल ABC सिमिलर टू कौन सा ट्रायंगल होगा, ये नाम आपको लिखना आना चाहिए. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो ट्रायंगल ABC, अब AB साइड इसको प्रोपोर्शनली इक्वल है. ध्यान से देखो RQ, तो पहले इधर आएगा RQ और C नेक्स्ट पॉइंट होगा P. ओके, तो इस तरह आपको नाम लिखना है करस्पॉन्डिंग टू करस्पॉन्डिंग. तो अगर आप ये नाम लिखते तो आपको देखो रेशियो कैसे मिलता है. AB upon RQ, then BC upon QP, then AC upon RQ. Okay, so corresponding sides are equal, and if corresponding sides are proportionally equal, then corresponding angles are also equal. It means angle A किसको इक्वल होगा? एंगल R, एंगल B एंगल Q, और एंगल C किसको इक्वल होगा? एंगल P. It means when two triangles are similar, ध्यान में रखना, जब कोई दो ट्रायंगल सिमिलर होते तो रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर ऑलवेज प्रोपोर्शनली इक्वल एंड करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल. ओके, और उल्टा अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है और रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनली इक्वल है तो समझ लेना दो ट्रायंगल सिमिलर है. ओके, तो यहाँ पे देखो तीनों करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम है, तो ये दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए बाय व्हिच क्राइटेरिया? yes, दैट इज कॉल्ड yes criteria. ओके,
तो यू जस्ट ऑब्जर्व, अगर हम दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए बाय एसएस क्राइटेरिया तो ऑटोमेटिक सिमिलर हो गए, इसके बाद उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या हो गए, इक्वल हो गए। सो दिस इज आवर सेकंड सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। अब हम थर्ड क्राइटेरिया देखते हैं, दैट इज कॉल्ड एसएस क्राइटेरिया। सो व्हाट इज एसएस क्राइटेरिया? एसएस क्राइटेरिया कॉन्ग्रुएंसी नहीं भी थी, इसमें क्या था कि दो साइड अगर इक्वल है और उनके बीच का एंगल इक्वल है तो टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। बट सिमिलैरिटी में थोड़ा फर्क है कि दो ट्रायंगल अगर आपको दिए हैं, सपोज एबीसी और पीक्यूआर, तो इसमें क्या है कि सपोज ये साइड AB और PQ, तो AB अपॉन PQ और BC अपॉन QR, ये दोनों साइड का रेशियो अगर इक्वल है, ध्यान से देखिए AB अपॉन PQ, AB करस्पॉन्डिंग टू PQ और इनका अगर रेशियो हमने निकाला, वो रेशियो BC करस्पॉन्डिंग QR है और BC अपॉन QR का रेशियो निकाला, तो ये रेशियो सपोज इक्वल है और इनके बीच का जो एंगल है दैट इज एंगल B और एंगल Q, ये इक्वल है, तो समझ लेना कि दो ट्रायंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर। तो इस क्राइटेरिया को बोलते हैं एसएस क्राइटेरिया। तो व्हाट इज मीन बाय एसएस क्राइटेरिया में क्या होता है कि कोई भी दो साइड दो ट्रायंगल के कोई भी दो साइड का रेशियो अगर इक्वल है और उनके बीच का एंगल अगर इक्वल है, then these two triangles are similar to each other. That is called एसएस criteria. Okay? So यहाँ पे देखो AB upon PQ और BC upon QR, ये रेशियो इक्वल है और इनके बीच का एंगल B और एंगल Q इक्वल है, so it means एसएस क्राइटेरिया से दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए, तो इनका नाम इसी तरह रहेगा ABC similar to triangle PQR. So this is the third criteria. अब इसमें आप एक चीज ध्यान में रखिए, ये तीनों क्राइटेरिया से अगर ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो उसका रिवर्स, ट्रायंगल्स अगर सिमिलर हो गए तो समझ लेना उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल एंड रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर आल्सो प्रोपोर्शनली इक्वल। ओके, नॉट साइड्स आर इक्वल, प्रोपोर्शनली इक्वल मींस रेशियो इक्वल। मैंने बोलने का आप समझ लीजिए, इक्वल नहीं बोल रहा हूं मैं, प्रोपोर्शनल मींस दो साइड का रेशियो इक्वल होना चाहिए। जैसे AB अपॉन PQ इसका रेशियो और BC अपॉन QR इनका रेशियो कैसा है, इक्वल होना चाहिए। साइड्स आर नॉट इक्वल, मे आर मे नॉट बी इक्वल, अगर इक्वल साइड होती है तो दोनों का रेशियो कितना होगा, 1:1। ओके, तो इक्वल भी हो सकता है लेकिन प्रोपोर्शनली इक्वल होना चाहिए, तभी टू ट्रायंगल सिमिलर होंगे। और दो ट्रायंगल अगर सिमिलर होते हैं तो उनका नाम भी इस तरह देना है। अब जैसे बताओ, क्या ये दो ट्रायंगल सिमिलर है, जैसे ABC ट्रायंगल PQR, AB अपॉन PR इज इक्वल टू AC अपॉन QR और एंगल A इज इक्वल टू एंगल Q। क्या ये इक्वल सिमिलर है दो ट्रायंगल? इसमें नहीं है, क्योंकि ये दो साइड का रेशियो ये आपको इक्वल दिया है, लेकिन इनके बीच का जो एंगल है दिस इज नॉट इक्वल, मींस हियर एसएस क्राइटेरिया जो है वो नहीं लग रहा है। सो दिस टू ट्रायंगल्स आर नॉट सिमिलर। तो आपको नाम भी इसी तरह देना है कि करस्पॉन्डिंग पार्ट्स एबीसी एंगल को सिमिलर है PQR, क्योंकि ये एंगल करस्पॉन्डिंग टू P, B Q करस्पॉन्डिंग है और C R को, इसी तरह आपको नाम देना। ओके, थैंक यू।